Hello everyone, my name is Swapnil Naidu. As usual, you know that with education journalism, I try to explain you on various topics. Recently, I have discovered that many people around the globe, not from India itself, from around the globe, are acquiring different kinds of degrees in different kinds of education field, different faculties. In India, we called it as science stream, commerce stream, then we called it as arts. In foreign countries, it is known as a term STEM, science, technology. This is a kind of their pattern. But every pattern I have observed that children's or students are taking education to just acquire a degree. Why degree is important? First of all, degree is the basic criteria for education. Degree is the basic criteria for jobs. Nowadays, worldwide, everyone is thinking of the jobs. So this video will be a little bit longer, but it may explain you on various criteria. First of all, the society pressure, the social pressure. If someone asks you as a parent what exactly your child is studying, what he or she is pursuing as an education, if you say that he is just or she is just performing a simple kind of education in a college degree, you will feel socially embarrassed. You pressurize your children to take the fields like science, technology. It is okay that the future is of science and technology, but you should not force your children, because if they are taking only degree for the sake of your dreams, that is really wrong. Technical education is only when you feel that you want to learn technical education. It is not a pressurized education system. As a teacher, I don't believe that parents should press their dreams on their children's. Second point, economic stability. All of us find that if we are having a good job, we are economically stable. For example, I am the founder and owner of my own institute. I run a kind of business. In short, you can say that I am a businessman. But I never force my son to opt my field. I am a chemistry teacher. I never tell him to apply for a chemistry or science. He has taken biology. It is okay. If he finds interesting, he will find his own way. My job is to make him study. My job is to make him grow. As a father, I am doing my responsibility. I should not suppress his dreams. He might be having a different manifesto, a different kind of agenda for his life. I should not force my narration on him. Second point, or not second, third point, that is family expectation. Usually, family draws a boundary around their children's. You have to study. You should think about the family. Why you are pressurizing him to think about the family? He will start thinking on itself when time comes. You are no one to make him mature before the age which is required. Next point, instrumentalization of education. You are using an education as an instrument to just to earn. You should use education to get yourself educated. I have seen many engineers, many doctors, many teachers, many bankers of different field. They have the first class degree. They are the toppers of their college. But if I ask them about the basics of their field, they simply say they have forgotten. Then what's the great use of this kind of lame education? You're just acquiring a degree. You're not acquiring a knowledge. You're just reading to get past. You're not working on the ethics of education. The ethics of education always tells us and reminds us that we need knowledge. We don't need bunch of degrees. It's a waste if you're not having knowledge regarding that degree. Last point, limited career options. Nowadays, children are having limited career options. Everyone is going for engineering, doctorates, like doctorate or MBBS or different kind of segment field. Ask your child what he or she wants to become. Now, why these parameters I'm discussing? These are the very general parameters you might have seen every time in your life. My topic is that it's a marriage market education system. You get your children educated just to get a good groom or a good bride in the coming future. You feel that if your child is not educated, he will not have a good family. This is really wrong. The family is run by the two different kinds of mind on a very single note that is known as common minimum program. It is not run by degrees. Okay, degrees are important for jobs and everything. If you set aside those things, you cannot set a manifesto of your son or daughter as a marriage material regarding its education diagrammatics. You have to think all these things. As I am also a father,
I am also concerned for my child. You're also a father, you're also a mother. You might be concerned for your child, but you need to have to sit with them, speak with them, spend some time. You're not spending time, you're forcing them just to get education, and in the form of only degrees. So, education is not in the form of degrees, education is in the form of how we study, how we practically implement what we have studied. हिंदी में आपको समझाता हूँ। मेरा नाम स्वप्निल नायडू है। आपने देखिए एजुकेशन जर्नलिज्म के थ्रू मैं आपको डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर बात करता हूँ। आज जो मैं आपको टॉपिक बात करने जा रहा हूँ, सारे पेरेंट्स को मैं सबसे पहले समझाऊंगा, फिर मैं बच्चों को समझाने की कोशिश करूँगा। हर पेरेंट अपने बच्चे को, हर माता पिता, हर अभिभावक अपने बच्चे को पढ़ाने की कोशिश करता है, साक्षर बनाने की कोशिश करता है। इसके पीछे कारण क्या है? सिंपल सा कारण है, कुछ पॉइंट्स है, हम उसके हिसाब से डिस्कस करेंगे। पहला, सोशल स्टेटस। हर व्यक्ति ये सोचता है कि उसके बच्चे का सोशल स्टेटस हो। हर माँ बाप सोचते हैं, और ये बहुत अच्छी बात है। लिविंग स्टैंडर्ड होना चाहिए, सोशल स्टेटस होना चाहिए, खर्चा करने के लिए आपके पास पैसा होना चाहिए, परचेसिंग पावर होनी चाहिए, मगर इसके साथ एजुकेशन भी प्रॉपर होनी चाहिए। मात्र डिग्री नहीं होनी चाहिए कि अगर मैं आपसे आपकी डिग्री का कोई बेसिक चीज़ पूछूं तो आप जवाब ना दे पाए, तो ऐसी डिग्री का क्या मतलब है? ये तो वही बात हो गई कि मैंने किसी टीचर से ये पूछा कि आप साइंस पढ़ाते हैं, आप मुझे कार्बन का एटॉमिक नंबर बता दीजिए। अगर वो नहीं बता पाता है तो किस बात का साइंस टीचर है? दूसरी चीज़ आती है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इकोनॉमिकली स्टेबल होना चाहिए, बैलेंसेस होने चाहिए उसके पास, रिजर्व फंड्स होने चाहिए, उसके पास लिक्विड कैश होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट्स होनी चाहिए। दैट इज़ वेरी गुड, फैमिली के लिए बिल्कुल होनी चाहिए। आई टोटली एग्री विद दिस। हम कमा रहे हैं तो हमें हमारे परिवार के लिए कुछ छोड़ के जाना चाहिए, ये हमारा फ़र्ज़ है। मगर आप अपने बच्चे को ये फोर्स मत कीजिए कि तू अगर कमाएगा नहीं, तू अगर पढ़ेगा नहीं तो तेरा परिवार नहीं चलेगा। आप उसको मोटिवेट कीजिए कि बेटा तुम्हारा काम है प्रॉपर एजुकेशन लेना, ईमानदारी से पढ़ो, ईमानदारी से परसेंटेज या ईमानदारी से अपने जो भी ग्रेड्स लाते हो वो लाओ, और अच्छे से अपनी पढ़ाई को सार्थक बनाओ, ज्ञान के पीछे भागो। ठीक है। तीसरी चीज़ होती है फैमिली एक्सपेक्टेशन। फैमिली क्या करती है, एक ना लक्ष्मण रेखा बना देती है बच्चे के आजू बाजू। बच्चा जो होता है ना काफ़ी डिस्टर्ब हो जाता है, बच्चे को ये बात समझ में नहीं आती है, यार मैं क्या करूँ। आप ना उसके स्टैंडर्ड्स बहुत हाई सेट कर देते, मत कीजिए। उसको अपने स्टैंडर्ड खुद सेट करने दीजिए। देखिए, हर इंसान ना अपनी किस्मत का खुद आर्किटेक्ट होता है। आप कोई नहीं होते उसकी ज़िंदगी की बिल्डिंग को बनाने वाले। आप तो ज़िंदगी की बिल्डिंग बनाने के लिए सिर्फ उसको बिल्डिंग मटेरियल सप्लाई करने वाले सप्लायर ही बन सकते हो। आप उसको खाना दे सकते हो, अच्छे कपड़े दे सकते हो, अच्छी किताबें दे सकते हो, रहने के लिए अच्छी छत दे सकते हो, अच्छी सुविधाएं दे सकते हो, बीमार ना पड़े इसलिए उसके स्वास्थ्य का ध्यान रख सकते हो। इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं कर सकते। उसे ही करना है जो करना है। चौथी चीज़ होती है इंस्ट्रूमेंटलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन को ना एक इंस्ट्रूमेंट, एक टूल के समान यूज़ किया जाता है। एजुकेशन को एजुकेशन के तौर पे यूज़ नहीं किया जाता। एजुकेशन को एक टूल में कन्वर्ट कर दिया गया जिसका नाम होता है डिग्री। डिग्री 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 डिग्री, जिसके पास ज़्यादा डिग्री वो ज़्यादा ज्ञानी। मैंने ऐसे कई डिग्री वाले ज्ञानियों को जब मैंने बात किया और उनसे मैंने बेसिक्स पूछा है ना, तो उन्होंने कन्नी काट के वहाँ से चले गए। वैसे भी मेरे से कन्नी काट के लोग चले जाते हैं, क्योंकि मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता हूँ। मैं किसी से कोई रियायत नहीं करता। मैं प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ आपको। मेरे से जो भी मिलता है, अगर वो अनप्रोडक्टिव बात 1 रुपये की भी करता है, मैं उसको 5 रुपये का ऐसा प्रोडक्टिव जवाब देता हूँ कि उसके बाद या तो वो खड़ा रहेगा या तो मैं वहाँ से चला जाऊँगा। लास्ट पॉइंट आता है जिसको बोलते हैं हम लिमिटेड करियर ऑप्शन। हमारे पास करियर ऑप्शंस क्या है? देखो, हर इंसान, हर घर में मैं पूछूँ ना, आपके बच्चे को आप क्या बनाना चाहते हो, माँ बाप बोलते हैं मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा, मेरा बच्चा इंजीनियर बनेगा, कोई ये नहीं बोलता कि मेरा बच्चा साइंटिस्ट बनेगा, कोई नहीं बोलता मेरा बच्चा इसरो में काम करेगा, कोई ये नहीं बोलता मुझे कि मेरा बच्चा जो है वो जन कल्याण करेगा, कोई ये नहीं बोलता मेरा बच्चा टीचर बनेगा, कोई माँ बाप ये नहीं बोलते कि मेरा बच्चा पॉलिटिशियन बनेगा, वो भी नहीं बोलता कोई। बल्कि सबसे अच्छा करियर पॉलिटिशियन है। जितने पॉलिटिशियंस है ना, डॉक्टर इंजीनियरिंग कोई डिग्री उनकी काम नहीं आती, सिर्फ ज़बान काम आती है, अप्रोच काम आता है पब्लिक के प्रति। हर माँ बाप के घर में जाओ, कोई माँ बाप ये नहीं बोलते मेरा बच्चा हिस्टोरियन बनेगा, मेरा बच्चा वॉल्केनिक स्पेशलिस्ट बनेगा, मेरा बच्चा एनवायरमेंटलिस्ट बनेगा, मेरा बच्चा एनवायरमेंटल टेक्नोलॉजी लेगा, मेरा बच्चा बायोकेमिस्ट बनेगा, मेरा बच्चा बायोटेक्नोलॉजिस्ट बनेगा। यार हज़ारों फील्ड है। आपने अपने दिमाग को ना ऐसे ब्लॉक कर दिया है। शादी में घोड़ा होता है ना, घोड़ा कैसा ऐसा लगाता है, उसको क्यों लगाते हैं मालूम? आजू बाजू नहीं देखना चाहिए। ऐसी ना आपको पूरी दुनिया के प्रेशर ने ऐसा लगा दिया। आप सीधा देखते पर देखो, अगर अपने लक्ष्य की तरफ देखो, उस लक्ष्य को अगर आपने ज़िंदगी में हासिल नहीं किया तो आप अपने बच्चे के ऊपर ना थोपो। मैंने मेरे बेटे के ऊपर नहीं थोपा है। मैं केमिस्ट हूँ, बायोकेमिस्ट हूँ, मैं ऑर्गेनिक साइंसेस पढ़ाता हूँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ। मैं एक बिजनेसमैन हूँ, क्योंकि मैं कोई जॉब नहीं करता, मैं मेरा इंस्टीट्यूट चलाता हूँ। मैं फाउंडर डायरेक्टर हूँ NSVCC इंडिया का। पर मैं मेरे बच्चे को कभी फोर्स नहीं करता कि तू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ले। भाई मुझे केमिस्ट्री पसंद है, उसे बायोलॉजी पसंद है, उसने बायोलॉजी लिया है। उसको मैंने पूछा 10th के बाद तुम इंजीनियर बनना चाहते हो बेटा? मैं इंजीनियरिंग में एडमिशन करा देता तुम्हारी, उस हिसाब से तुम मैथ्स ले लो, PCM ले लो। तो मुझे सीधा बोला पापा मेरे को बायोलॉजी लेना है। उसने मुझे ये नहीं बोला मेरे को डॉक्टर बनना है। उसका ड्रीम कुछ और होगा, उसने कुछ और प्लानिंग की होगी। मेरा काम है उसको पढ़ाना,
मेरा काम है उसको बेसिक एजुकेशन देना, अच्छा खाना, अच्छा पानी, अच्छा रहन सहन, सेहत का ध्यान रखना, ये बेसिक नेसेसिटी देना एक माता पिता का काम होता है। माता पिता का काम बच्चे के ऊपर फोर्स करके उसके करियर ऑप्शंस को डिसाइड करना नहीं होता। इसके साथ मैंने आपको समझाया है कि आप इसको फोर्स मत कीजिए। अच्छा, अब इतना इंसान पढ़ाता क्यों है? माँ बाप क्या करते हैं, बच्चे का ना जैसे इलेक्शन का मैनिफेस्टो तैयार होता है ना, बच्चे का ना एक मैनिफेस्टो तैयार किया जाता है। वो मैनिफेस्टो होता है शादी का मैनिफेस्टो। तू जितना ज़्यादा पढ़ा लिखा रहेगा तो उतने अच्छे घर की लड़की मिलेगी। भाई, लड़की लड़की छोटी, 206 हड्डी होती उसके अंदर। और लड़की वालों को ही बताना चाहता हूँ कि लड़का लड़का ही छोटा, उसके अंदर भी 206 हड्डी होती, 207 या 208 नहीं होती। ऐसी कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। एक आध दो म्यूटेंट होते हैं, ऋतिक रोशन जैसे जिसका 2 अंगूठा है। हर किसी के 2 अंगूठे 4 अंगूठे नहीं होते। तो आपने उसको ना मैरिज मटेरियल बना के रखा है, आपने उसका मैनिफेस्टो एक सेट किया हुआ है। आपको ऐसा लग रहा है इलेक्शन में खड़ा करने वाले हो आगे जाके। शादी का इलेक्शन, स्वयंवर, जैसे पहले स्वयंवर होता था ना, सिलेक्शन होता था, प्रोग्रामिंग, वैसे आप उसको कर रहे हो। स्टॉप प्रोग्रामिंग योर चाइल्ड। अपने बच्चे को ना प्रोग्राम करना बंद करो। अपने बच्चे को जीने दो, वो कर लेगा। वो आज की 21वीं सदी है बॉस। आपका और आपका दोनों का डीएनए मिक्स करके एक हाइब्रिड डीएनए बनाया, एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया। हमारी भाषा में उसको ये बोलते हैं XX और XY क्रोमोसोम से, या तो XY लड़का पैदा हुआ है या तो XX लड़की पैदा हुई है। वो उनके पास दोनों की जीन्स है। आप उसको मत समझाओ, वो खुद ही समझदार है। समय की चोट खा के 2-3 गलतियाँ करके वो सीख लेगा। बट आप उसको अगर लगातार अगर हैमरिंग और हथौड़ा मारते रहोगे ना, उससे वो नहीं सीखेगा। तो समझदार बनिए, डिग्री को मैरिज मटेरियल मत बनाइए। ये मेरी आपसे उम्मीद है। मैं रेगुलरली आते रहता हूँ। ये थोड़ा सा वीडियो 15 मिनट का हो गया, बट इसको ज़रूर सुनिए अपने परिवार के साथ। हो सके तो माता पिता के लिए भी सुने, बच्चे के सामने ना सुने, वरना बच्चा दूसरे दिन प्रोटेस्ट में पड़ जाएगा कि देखो नायडू सर ने बोले हैं तो मेरे पक्ष की बात हुई है, तो पढ़ना ही बंद कर देगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अकेले में बैठ के दोनों हस्बैंड वाइफ इस चीज़ पे ज़रूर विचार करें। सारे लोगों को धन्यवाद। मेरे साथ जुड़े रहिए। बहुत जल्दी मैं प्रोग्राम लॉन्च करने वाला हूँ जिसके बारे में मैंने आपको बताया है। मैं कंसल्टेशंस दूंगा। ये कंसल्टेशंस पर्सनल भी होगी और ये लाइव सेशन भी होगी। ये एक साइकोलॉजिकल कंसल्टेशन रहेगी सभी की मदद के लिए। थैंक यू वेरी मच।